Team spirit is a bond that unites the members of a team, giving them the impression of an old united team and pushing them to work for the common interest to the detriment of the individual interest. Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized the fourth session in the LEAD training series on the emphasis on the relevance of team building and the spirit of collaborative success. Let us hear what our expert Mr. Govind Mishra has got to say. Mehmani ma'am, Professor Mamta Sharma, Principal ma'am, and the entire team of Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya. I'm glad that we could meet today on this auspicious day, Vasant Panchami. हल्के हल्के से हो बादल, खुला खुला सा हो आसमां, मिलकर उड़ाएं पतंग अमन की, आओ फैलाएं खुशियों के पैगाम. इस ऑस्पिशियस डे पर विद्या की माँ देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित वसंत पंचमी पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं. So we had the session 3, we had the welcome note, which was given by Ms. Mukta Bharadwaj of Vishwa Yuva Kendra, the program officer, welcomed all the participants and the speaker. Then we had Ms. Apurva, who had given the recap for the last session. Then we had the presentation by the resource person, Mr. Govind Mishra ji. Then we had the Q&A session by Dr. Manju Goel of Aditi Mahavidyalaya, and the vote of thanks by Ms. Manisha Pal of Aditi Mahavidyalaya. So now coming to the recap. So Mr. Govind had started, throughout his topic, his discussion, he had given his ideas of how, he gave in quotes in Sanskrit about in relating with also Chanakya and giving other examples with the topic, and how leadership can come about. He also gave in the concept of PNL, which is of people and learning during the discussion. How he also explained how learning is an ongoing and a lifelong process. It never ends. It is from the day you start coming in this world till the day we go. That is a process which is that we have to continue always. He also talked about positive and negative infection as well. He talked about leadership of change, how important change is for the society. I think that is how we have progressed, I think, for numerous thousands of years. That is the leadership of change has always been there, and it's very important that it remains like that. And leadership is not just defined by results. He emphasized on those points, like it is always defined by results and not attributes. He talked about how we people need social validation. If we put any, I think we are living in a social world now, I think more than ever. And as our Prime Minister, Mr. Modi ji, had always emphasized, I think we are going into a digital world. I think coming up, all this, I think digital currency is also going to come up, digital notes as well. So I think there are a lot of things which are coming up. So the whole digital world is growing day by day. It's growing big. And if we see Facebook, if we see Instagram or various modes of social media, everybody is connected, and it has left nobody behind. The concept of leave no one behind. I think everybody is connected through internet, so everybody needs social validation. If we put a photo, I think we need likes. If we don't get likes, I think we get offended. We don't like it. Causes us problem like mental illness. I think a lot of people are facing problems related to mental health with that as well. So that's a very big point that Sir had shared. He also shared about how he was part of NCC, and how the experience in the army where he was training, it changed his life, and never give up, never die attitude that he always has built from that time. So he shared about that as well. He also shared that if you want a return, you have to be patient. You can't expect, you just put a seed right now and the tree grows, into a huge 100 feet tea, all together in a day. It takes time. We have to nurture it, to put water, you have to put manure, you have to take care of it.
So it is, you have, patience is a very important, point that he had put in. He also shared, a leader shares their vision among people. As we see, even our prime minister, he shares his vision with the people. All with his idea of sabka saath and sabka vikas. And I think Govind sir had also emphasized on those points as well. Uh, he also shared that a leader is best known when people barely know he exists. There are people who do, good work. You take an example of APJ Abdul Kalam. People didn't know, like, his work used to speak for him. There are people like Mahatma Gandhi ji. All these people are leaders because their work used to speak about themselves. So, and they have always kept leadership as a very important aspect of their life, and creating other leaders as well. It's not just creating one leader, but creating leaders among us, or among different people. He also showed a video on leadership, how you should never stop trying. I think it's a very old jingle, an ad which came up in the 80s, and I think it was it was a moment that I can connect, I think, to our younger lives, back then. I think we miss all that. I think so. That was a very great video that I think brought the old times in us. He also shared that communication is not only about using great words; it's about how simple or easy you can be. You don't have to be. Everybody, can't be Mr. Shashi Tharoor. We can't use, really great words like him. We can also use simple words. Uh, you know, uh, a person who comes from the ground, maybe from the rural belt, he doesn't need to learn English to or learn certain vocabulary to certain vocabs to be a great person. I think how simple they can speak, if they can connect to the person, through the heart. I think it's more not through the mind. I think through the heart, that's more needed. So I think sir had shared about it, that as well. Then leader is a collaborator and a catalyst. He's not just a person who's there just alone too. He's a person who connects different people around him, different kind of people, different types of people, ideologies, and who come together for a common cause. And he shared about that. A leader always a leader finds the problem. Sometimes leaders, they kind of hide all the problems, but he kind of finds the problem. He's quiet, he's patient, and he tries to kind of solve the problem, because he's kind of a risk taker, and he has to take those risks as well. So a leader tries to communicate with everybody, and especially with his team as well, and plus with everybody, because communication is at most important. And it is not about using great words. Once again, I emphasize using simple and easy words which everybody can understand. Like we say, dil se dil tak बात अगर पहुंच जाए तो ज्यादा आसान होती है. Then he also shared about a leader tries to persuade and convince people there is a problem and find solution for that. We can't live in denial that there is no problem. Everything is going good. We are going to win this match, or we are going to achieve this. He will find a solution to it, not only by himself, but taking in advice from everybody, and what works where he or she would put there. And he also shared about a leader builds coordination among people. It's very important that we designate work, or create a coalition or coordination, and that too smooth coordination. It is not a haphazard coordination. There has to be smooth coordination among the groups. So a leader does that, and like we always see in opera. There is 100 people in the orchestra, but there is that one leader who creates such a symphony that it sounds so good. So he put emphasis on that. He also shared a leader invest in relations which are meant to be long term. I think in today's world, I think it's all short term. I think in everything is short term. All our relationships are meant for certain reasons, but he invests in everything which is meant to last a lifetime. So he always does that, or he or she. A leader needs to empower other people around them. You need to spread that energy. I think if there is negativity in you, it will spread. If there is positivity in you, it will spread. So
there has to be a lot of that. So that was a recap. We are now coming in. This is about some feedback, that how did you come across the course? So this is just a graph pictorial representation that we are sharing with you. Were the course content relevant? So this is the feedback that we received. This is speakers successfully delivered the topics. So I think there is a overwhelming response. And this is about how would you rate the course. And lastly, I would end with a very important quote that I think I have learned, I think with a life with experience of whatever I've had, that it's important to learn, but it's more important to unlearn, because we learn so much, there is not so much space left to learn. So we need to leave out, I think a lot of people, I think our cups are already full. So we need to empty that, and then we need to relearn. So that this whole process that we are doing today, the recap, it will help us to do that, unlearn, and then we relearn again. So thank you. All our organizers, and I would call them bridges and catalyst, because ये जो दो institutions हैं, संस्थान हैं, VIK and अदिति महाविद्यालय, जब ये मिले हैं तो ज्ञान का जो सृजन किया है इन्होंने, वो आप देख सकते हैं दसों दिशाओं में अब फैलता चला जा रहा है. Thanks to everybody over here, all our panelists, and special love and warm regards to our audiences. And दिन बहुत ही शुभ है, आज का बहुत ही शुभ दिन है, वसंत पंचमी का दिन है, और लहलहाते खेतों में आज फसल भी काटे जा रहे हैं, और माँ सरस्वती का आज आशीर्वाद भी मिलता जा रहा है. And the way the session started today with that Saraswati Vandana, it was really a blessing moment for all of us. And if I talk about Goddess Saraswati, I must say, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड सो शुभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली मां सरस्वती हमारी रक्षा करें. हे देवी, आपको नमन है. और इन्हीं सुशब्दों के साथ हम लोग आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं. एंड मंजू जी ने द एग्जाम्पल शी शेयर्ड ऑफ अ फैमिली, इट एक्चुअली समअप्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, it summed up all the topic today. Either it be team building or collaboration, also crisis management, And thank you, thanks a lot, ma'am, for sharing that beautiful example. तो देवियों और सज्जनों, चलते हैं आज एक नए राह पे, एक नए सफर पे, और कहते हैं ना कि यादें याद रह जाती हैं, बातें कभी कभी भूल जाते हैं. और यादों से ही याद आया मुझे कि राहुल नाम तो सुना ही होगा, और घबराइए मत, हम उस राहुल की बात नहीं कर रहे हैं जो हमने कई सालों से पिक्चरों में देखा है. हम तो राहुल उसकी बात कर रहे हैं जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में अकाउंट्स हेड है. आज उनकी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको. तो बात उन दिनों की है जब राहुल एक एडवर्टाइजिंग फर्म में अकाउंट्स हेड की नौकरी करते थे, और राहुल के पास 4 जूनियर्स थे. ये 4 लोग राहुल को रिपोर्ट करते थे. राहुल कभी भी उन 4 पे विश्वास नहीं करता था, पता नहीं क्यों. उसे लगता था कि कभी भी ये जो 4 लोग हैं, ये सही काम नहीं कर सकते. And unfortunately, he always, underestimated his team members and fought with them constantly. बड़ी विडंबना वाली स्थिति है ये. एक दिन राहुल को एक क्लाइंट से मेजर असाइनमेंट मिला, जिसे 2 दिनों के अंदर सबमिट करना था. एंड आई नो ये जो कंडीशन है, ये आप में से कई लोगों ने फेस किया होगा कि फटाफट प्रोजेक्ट सबमिट करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है. तो राहुल के पास 2 दिनों का डेडलाइन था. तो अब साहब समय कम है और काम ज्यादा.
करें क्या करें समझ नहीं आ रहा, विडंबना वाली स्थिति, बड़ी कश्मोकश में राहुल फंसा हुआ है. So he decided to do it all alone. उन्होंने अब निश्चित किया कि अब मुझे सब काम अकेले करना है. Because Rahul thought that nobody else could do it apart from him. क्योंकि वही सब कुछ करने वाले थे. Rahul could not ever submit his assignment. And especially on the required day when he was called, he was badly criticized by his superiors. His organization also lost one of their major and prestigious clients. आपको क्या लगता है राहुल क्यों फेल हुआ और क्यों अपना असाइनमेंट राहुल ने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया? Ladies and gentlemen, here comes the importance of a team. अगर राहुल ने अपने टीम मेंबर से हेल्प ली होती तो असाइनमेंट आई बिलीव टाइम पे कंप्लीट हो जाता और टीम के साथ मिलके एफिशिएंट भी हो जाते और शायद राहुल को अपने सीनियर से, अपने क्लाइंट से अप्रिसिएशन भी मिलता. ये इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में टीम का. अगर हमने टीम को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं भवसागर में फंसे रह जाएंगे. Leadership through education, action, and determination. A bridge which is gapping the gap or which is filling the gap between the required things, the required resources. And even if you see, the lead is an example of team where numerous peoples are coming across together and putting their efforts for a common cause. And this is how when you see numerous people, you talk about numerous people, then the question arises कि साहब ग्रुप और टीम में फर्क क्या है? तो हमारे ऑडियंस में से कोई चैट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रुप और टीम में डिफरेंस क्या है. ओके, और ग्रुप से आपको कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या? अगर आपके आसपास अपने लाइफ में आपको कोई ऐसा एग्जांपल हो कि जहां पे ग्रुप वाला जो फीलिंग है, ग्रुप वाली फीलिंग होती है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो या फिर ग्रुप शब्द का यूज होता हो, तो नीलिमा कहती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एराज सिद्दीकी कहते हैं एवरीवन कंट्रीब्यूट्स इन अ टीम, एंड तनुश्री सेज सोसाइटी, विद्या सेज टाटा ग्रुप, प्रज्ञा टीम इज द वन हु कम्स टुगेदर टू डील विद चैलेंजेस. ओह माय गॉड, एंड यू कुड सी the group of people over here, they are sharing their views, their opinions through the chat box. और अदिति कहते सर ग्रुप फीलिंग इज फेल्ट बिटवीन फ्रेंड्स मेनली. अपने तो अपने ही होते हैं अदिति. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे भी एक ग्रुप का एग्जांपल याद आ रहा है और आई नो आप सभी के लाइफ का पार्ट होगा, क्योंकि अगर हम देखें ग्रुप इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर क्रीचर्स. और बेस्ट एग्जांपल इससे अच्छा क्या हो सकता है आजकल ग्रुप का? वो व्हाट्सएप ग्रुप. आई बिलीव आप सब किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य रहे होंगे या फिर कुछ एडमिन्स भी होते हैं. एंड यू कुड एनालाइज, यू कुड रिकॉल दैट मोमेंट जब व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह आप उठिए, हर रोज ढेरों मैसेजेस की फ्लडिंग होती है. ओ गॉड, इतने सारे मैसेजेस, कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें? और दुविधा तो तब होती है वो जो रीड वाला नोटिफिकेशन भी कई लोग देख लेते हैं. और आजकल तो मैंने ये सुना है कि ग्रुप में किसने मैसेज को देखा वो भी पता चल जाता है. अब मजबूरी में कई बार वो मैसेजेस को स्क्रॉल करना पड़ता है. स्क्रॉल कर रहे हैं करते जा रहे हैं, तभी अचानक नीचे मैसेज आता है, इतना स्क्रॉल करके क्या मिला? उफ, और इच्छा होती है कि थोड़ा और स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे मैसेज आता है, देखो गधा अभी भी स्क्रॉल कर रहा है. तो ये विडंबनाएं हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे. सो ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. समूह जब किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का बना दें तो ग्रुप बन जाता है. बट ग्रुप और टीम में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं. And I know you all are aware of our action Kumar, Akshay Kumar. आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं जाने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक चलो चलो जल्दी.
अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? हम दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ। आगे हम लोग अपने मूवी को कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक आपसे मेरा मानना है और जानना है कि अभी तक आपने जो वीडियो देखा उसमें क्या समझ में आया। अगर कोई चैट बॉक्स में शेयर करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखा है नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रनिंग टू प्लेस एंड रिप्लेस द ब्रिक्स। सो नवीन कहते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, everyone is doing their work only, no teamwork. And Deepak कहते हैं group, गरिमा ने कहा group of people doing a work but no teamwork. And I must say that my audience, they are so smart. जो हम समझाना चाह रहे थे उन्होंने मुझे ही समझा दिया। Thank you very much. So अब आगे चलते हैं, उस मूवी की बाकी कहानी को देखते हैं। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन फॉर्मेशन। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए तो आज मैं भी आपके सामने एक टीम को शेयर करता हूं। होपफुली हम सब अवेयर हैं इन टीम से। Why are these two teams famous? What's the reason that these two teams are very famous? When great people, they came together as groups, and that team worked towards achieving a common goal, and everything was focused on that one common goal, and that was to get the World Cup for India. And this is how, ladies and gentlemen, the team is known as Team India. We all are proud of our cricket team, the sports team, and especially, how can we forget the team of courageous people, the Indian Defense Forces, the paramilitary forces, the police forces, the disaster management forces. They are the people who come together to achieve something, not for themselves, but for the entire society, for the betterment of the entire society. And this is how great teams, they do great deeds. वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया में क्रिकेट का आपने क्रेज देखा होगा, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। तो एक टीम जब एक बेंचमार्क सेट करता है तो कई लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो कई लोगों के साथ उनका दिल जुड़ता है और दिलों से दिल जुड़ते चले जाते हैं, और फिर वो टीम और बड़ी और अच्छी होती चली जाती है। अ टीम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। ग्रुप जब होते हैं तो शायद कॉमन पर्पस मिसिंग होता है, बट जब उस ग्रुप में एक कॉमन पर्पस आने लग जाता है जो सबको एक साथ बांध के रखता है, दैट बिकम्स अ टीम। हम सब ने सुना होगा like-minded people. We should find like-minded people. What's your view? Should we go for like-minded people only? या फिर आपका कोई और व्यू है? क्योंकि हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि वहां पे भी अगर आप देखेंगे like-minded लोग हैं। What I have understood that it is not always about like-minded. It is about right-minded. Today, the program जो आपके सामने पेश किया गया है, it is becoming successful because of the right-minded people, the collaboration of right-minded people from VIK and Aditi Mahavidyalaya. और इस तरीके से जितने भी right-minded लोग जुड़े हैं, इन्होंने अपने
साधनों को शेयर किया, रिसोर्सेस को शेयर किया, अपने इंटेलिजेंस को शेयर किया और एक बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. And this is how, even this is an example of great team. And I must say that our audience, we should appreciate the efforts by this great team. बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग आपके सामने प्रोग्राम को लेके आने के लिए. बिहाइंड द स्क्रीन रह के सेशंस को और इफेक्टिव बनाने में जितना इस टीम का रोल होता है, मुझे नहीं लगता कि शायद उतनी मेहनत मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इस टीम ने बहुत कुछ आप लोगों को दिया है. क्योंकि ये एग्जाम्पल है राइट माइंडेड लोगों का, और ये राइट माइंडेड लोग जब एक साथ जुड़े तो आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये समूह जो है और बड़ा होता जा रहा है और टीम बहुत इफेक्टिव होती चली जा रही है. और इस तरीके से अगर आप टीम वर्क की बात करें, एक बहुत जरूरी एलिमेंट है. अगर टीम वर्क को इग्नोर कर दिया जाए तो शायद हमारे लाइफ में सक्सेस कहीं ना कहीं दूर चली जाएगी. और जब टीम वर्क को हम अपने साथ जोड़ते हैं, हमारे लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, या फिर हम किसी प्रोजेक्ट या किसी फैमिली या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाना चाहते हैं, तो हमेशा आपको एक अच्छे टीम की आवश्यकता होगी. You'll require a team. And this is how our faculty, our organizers, and especially Dr. Manju, when she was sharing about the example of her family, she also said the same thing. So team everywhere is must. And the team, when it starts working towards a common goal, that becomes a team work. So टीम की मदद से जब हम काम करने लग जाते हैं, हमारा वर्कलोड जो है आपस में बढ़ जाता है. और जब हमारा जो वर्कलोड बढ़ने लग जाता है, तो इंडिविजुअल जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं, और इस तरीके से हम वहां से बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं. तो टीम वर्क आपको बेहतरीन रिटर्न भी दे सकता है. एन इंडिविजुअल, इफ यू सी, it cannot perform all tasks on his own. आप कितना कर लेंगे? हर इंसान की एक लिमिट होती है. उसके बाद धीरे धीरे हम लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं. बट जब और लोग आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं, तो और लोगों की स्ट्रेंथ आपके साथ आने लग जाती है, और वो इंडिविजुअल एफर्ट अब ग्रुप एफर्ट में बन जाता है, और धीरे 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 हम सीढ़ी दर सीढ़ी अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं. अगर आप सभी को याद हो, जन्माष्टमी का जब त्योहार होता है, तो उस टाइम पे पिरामिड्स बनते हैं, और लेयर बाय लेयर लोग एक दूसरे के ऊपर आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ऊंचा होते जाते हैं, और अचानक से एक इंसान सबसे ऊपर होता है, वो हांडी को तोड़ता है और दही का एंजॉय करता है, और लोग उनके लिए ताली बजाते हैं. लास्ट सेशन में हमने बातें करी थी लीडरशिप की. अगर सिर्फ लीडर रह जाएगा और टीम ना हो, तो उस लीडर की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वो अकेला है. लीडरशिप तभी सामने आते हैं जब आपके साथ लोग जुड़े हुए हो. हाउ यू परफॉर्म ओवर देयर, हाउ यू रिस्पॉन्ड, व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग, इट ऑल डिसाइड्स दैट यू कैन बिकम अ ग्रेट लीडर. बट इट शुड बी एन एफर्ट ऑफ एवरीवन, एंड दैट एवरीवन वी कॉल एज द टीम एफर्ट्स. सो you talk about any gargantuan organization in any field, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में उठा के देखिए, अगर आपको कोई बहुत विशाल का ऑर्गेनाइजेशन याद आता है, उसका नाम अगर आपको याद आता है, आप देखेंगे that they have achieved that stature with efforts of numerous people. आपको कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में आज भी बड़ी इज्जत से उसका नाम लिया जाता है, और आज भी 100-200 साल के बाद भी वो इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? एनी एग्जांपल, डू यू रिमेंबर? ओके, प्रज्ञा कहती है यूनाइटेड नेशंस, वंडरफुल. एंड लिपिका ने कहा अमूल. अमूल बोलते ही अगेन वो बचपन की यादें ताजा हो जाती है, बिकॉज इनके जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो दिल को छू जाते हैं. देन उदय कहते हैं टाटा ट्रस्ट. एंड ऑब्वियसली टाटा ट्रस्ट, अगर आप बात करें कंपैशन के फील्ड में, टाटा ने बहुत कुछ किया है. एंड कल वर्ल्ड कैंसर डे था, और जब कैंसर की बात होती है तो टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मुंबई में हॉस्पिटल है, एंड इन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया है.
और रेड क्रॉस की बात करें तो जब भी वॉर वगैरह होते हैं, जब भी ऐसे कैटास्ट्रोफी होती है तो रेड क्रॉस आता है। फिर हमारे एग्जांपल्स हैं, यूनिसेफ लोग कह रहे हैं, जापान हो गया, देन महिंद्रा ग्रुप हो गया, बजाज ग्रुप, टाइगर बिस्किट, एंड यू नेम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाटएवर यू रिमेंबर, यू कुड सी ये एक इंडिविजुअल एफर्ट से कभी इतने बड़े नहीं बने हैं। ये अगर बरगद के पेड़ बने हैं तो बरगद का पेड़ एक दिन में नहीं बनता, धीरे 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 करके वो बरगद की शाखाएं जो होती हैं जमीन से ऊपर से ज्यादा जमीन के अंदर फैलती हैं, और जब वो वहां पे स्ट्रेंथ उनको मिलता है, वहां पे वो स्ट्रांग होते हैं, तो धीरे धीरे जमीन के ऊपर भी उनकी शाखाएं आपको दिखने लग जाती हैं, और धीरे धीरे एक शाखा एक नए परिवार के साथ जुड़ता है, एक नए परिवार के साथ जुड़ता है, और कहते हैं कि 200-300 साल के अंदर एक बरगद के पेड़ से कई बार जंगल भी बन जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। लास्ट सेशन आई रिकॉल द वीडियो आई शेयर्ड, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे एक चिड़िया और अनेक चिड़िया, एक चिड़िया शायद उतना एफर्ट नहीं हो पाता, लेकिन जब अनेक चिड़िया आ रहे हैं तो आपका ग्रुप एफर्ट आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो। और इस तरीके से इतिहास को आप उठा के देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच स्टिल वी रिकॉल, sometimes with respect, sometimes because of the structure of the organization, sometimes because of the compassion towards the society by that organization. They all are successful because of team. And rightly said, team का मतलब ही होता है together everybody can achieve more. Together everybody can achieve more. तो साहब ये तो बातें हो गई कि भाई टीम क्या होता है, टीम क्या करता है और टीम कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि साहब ये जो टीम है ये बनते कैसे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ भी चलते हैं कि टीम बनते कैसे हैं। तो टीम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा, इट शुड बी हाईली इफेक्टिव टीम। So these are some pointers, or these are some foundational principles which I believe if you follow, you can create a great team. Highly effective team. और highly मतलब सबसे ज्यादा वहां से हम लोग चीजों को ले पाए। Effectiveness, अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के साथ उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है, दूसरे लोगों की लाइफ में वो कितना प्रभावी बन रहा है, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे उसको और प्रभावी बना रहे हैं। इस तरीके से आपकी जो टीम है वो हाईली इफेक्टिव टीम बन सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, वी कॉल इट व्हाट डू यू कॉल, कॉमन गोल। एंड सिंस लास्ट सेशन we are talking about common goals, यानी कि एक जैसा लक्ष्य जो मेरा भी है, जो आपका भी है। आज यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके से कोलैबोरेशन है। पहला कोलैबोरेशन वीआईके एंड अदिति महाविद्यालय, दूसरा कोलैबोरेशन इनका मेरे साथ, तीसरा कोलैबोरेशन हम दोनों का आपके साथ, ऑडियंस के साथ। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये जो कोलैबोरेशन है इसने एक टीम को क्रिएट किया है जहां पे एक ही कॉमन गोल है, वो है लीड। कैसे हम एजुकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहें, नई नई चीजों को सीख के आगे बढ़ते रहें, और हमारा जो नॉलेज रिपोजिटरी बॉक्स है, जो रिसोर्स है, वो और डेवलप होता चला जाए। तो कॉमन गोल बहुत जरूरी है। अगर हम अपने गोल्स को अलग अलग कर लें, इफ द टीम मेंबर्स एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट गोल, तो कोई इधर चला और कोई उधर चला। सेकंड आता है कोहेजन। कोहेजन, अच्छा, मैंने जब पहली बार इस वर्ड को सुना था मुझे लगा कि शायद ये कोई नेगेटिव टर्म होगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं था, बट व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। कोहेजन यानी कि एक साथ जुड़े या जुटे रहने की योग्यता, सुसंगठन यानी कि गुड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक साथ आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड दोज हु हैव एक्सपीरियंस द जॉइंट फैमिली दे नो, जब बर्तन बहुत सारे होते हैं तो आवाज भी आती है वहां,
बहुत आवाजें आती हैं। अगर बर्तन ही कम है तो आवाज ही नहीं आएगी। अच्छा, बेस्ट पार्ट, आपकी फैमिली में अगर आप देखेंगे जब बहुत सारे लोग होते हैं तो लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, लोगों की मेंटालिटी अलग होती है, लोगों का सलीका तरीका सब अलग होता है। यही तो खूबसूरती है इंसानों की। हम वी आर डिफरेंट बट वी आर यूनाइटेड। We are different, but we are united. And here comes the role in the family of your grandparents, those who have the authority, कि कैसे इन सभी लोगों को एक साथ बांध के रखा जाए। और मंजू जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज हमें भी बर्थडे सेलिब्रेशन पे बुलाइएगा। मुझे वो दिन याद हो गए हैं, फरवरी और जून का, एंड आप नहीं बुलाएंगे तब भी मैं पहुंच जाऊंगा, बिकॉज अगेन आई वुड लाइक टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 22 टीम मेंबर्स, because that quality we are missing today. Today we are heading towards nuclear. And the problem is when we are going nuclear towards the family approach or the institution of family, it is creating rift between people. And that leads to rift within the society. और ये बहुत बड़े लेवल पे रिफ्ट बढ़ने लगा है, क्योंकि अब लोगों को लगता है मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट इज गुड, बट फैमिली की खासियत होती है वी आर इंटरडिपेंडेंट। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे, एक कोई बीमार होता है तो उसकी जो कमी होती है कोई और पूरा कर देता है, उसके काम को कोई और कर देता है। ये फायदा होता है दैट कोहेजन में रहने का, एक साथ जुड़ के रहने का, सुसंगठित होके रहने का। क्योंकि जब आप सुसंगठित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमियां जो हैं वो छिप जाती हैं, या फिर someone else fills the gap. So cohesion, we should understand that we all are different, but we can be together. And अकेला दिक्कत होता है, अगर साथ में रहेंगे तो बांध बनेंगे और आप बहुत बड़े प्रवाह को भी रोक सकते हैं। The third, collaboration. And the best part, आज हमारे सेशन का सेकंड टॉपिक यही है, कोलैबोरेशन। अगर हिंदी में बात करूं तो आई वुड कॉल इट सहकार्यता, सहयोग। एंड आई रिमेंबर someone in the chat box shared the example of self-help groups, and especially Lizzat Papad, the lady who started Lizzat Papad. Anybody who knows the name of that lady, जिनको अब last year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई थिंक पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, although थोड़ा टाइम लगा, but still she actually deserved it. Anybody who remembers the name of that lady who started the movement called Lizzat Papad? Okay, Oshwinder Popli कहते हैं इला बहन भट्ट. Okay, and any other answers, or is it the same? Ila Behan Bhatt. So I'll consider Oshwinder's answer is the right answer. And then Vidya कहते हैं MBA चाय वाला. Okay, there are a lot of examples in it. And Zulfikar कहते हैं Ila Behan. So imagine a single lady started a movement, but she was not alone, क्योंकि उनके साथ और भी कुछ बहनें जुड़ी थी. सोच उनकी थी, but जुड़ाव कईयों का था. और धीरे धीरे that group of people became a team, and that team spreaded across different parts of the country. And this is how thousands of women's, their life has been changed because of this collaboration of great minds. और इस collaboration के साथ एक और चीज जुड़ जाता है, कमिटमेंट. कई बार हम अपने हेल्थ को लेके कमिटमेंट सिर्फ 31 दिसंबर की रात को देते हैं, एंड वो भी हैशटैग महा रेजोल्यूशंस. और देखा गया अधिकतर कि इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है 9th of January तक ही होती है. दैट्स नॉट कमिटमेंट, दैट्स कॉल्ड रोमांसिंग, रोमांसिंग. और वो कहते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे. आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे. दैट्स नॉट कमिटमेंट. ना तो इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे. अच्छा, और कुछ कहावत और भी कहे गए हैं कि थाली का बैंगन, अब इधर लुढ़का और उधर लुढ़का. दैट्स नॉट कमिटमेंट. यू शुड बी कमिटेड टू समथिंग. एंड इमेजिन अगर आपके लोग, आपके टीम के मेंबर्स कमिटेड हैं एक साथ, तो ये रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा और ये कोई नहीं पूछेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि वो जो रिश्ता है वो दिल से जुड़ा हुआ है. कमिटमेंट सबका वहां पे है. और इस कमिटमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, यू नो व्हाट,
We need to talk. We need to talk. On a lighter note, I remember nowadays what's happening. रिश्ते WhatsApp पे जुड़ बनते हैं और रिश्ते WhatsApp पे टूट जाते हैं. And the common SMSs, the people are sharing today. Hey, listen, I think it's not working anymore. Let's take a break. Let's move on. That's not communication. Rather, it is even not talking. और जहां जहां गैप होता है बात करने में, तो दिक्कतें आती हैं. अच्छा, communication से I remember one more misconception. लोग कहते हैं, सर जी, जनरेशन गैप है हमारे बीच में. जनरेशन गैप, हमारी फैमिली में कोई सुनता ही नहीं है. अच्छा जी, बहुत बढ़िया है. हमारे जमाने से पूछे, हमें सुनते थे लोग और उसके बाद ढूंढते भी थे. सुनते भी थे और ढूंढते भी थे. बट हाँ, मजा आता था, लोग बातें तो करते थे. सर, क्या आज के जमाने में बातें नहीं होती? बहुत होती हैं, बहुत होती हैं. बट आई डोंट नो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. कम्युनिकेशन, अगर आप देखेंगे, लोग जनरेशन गैप की बात करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, क्या वाकई में वो, मेरा आपसे सवाल है, क्या वाकई में जनरेशन गैप होता है? आपका क्या व्यू है? जनरेशन गैप वाकई में होता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? एनी आंसर्स फ्रॉम माय ऑडियंस? ओके, प्रज्ञा कहते हैं यस, अर्पिता कहते हैं यस, यस. ओह माय गॉड, एवरीवन इज सेइंग यस. अच्छा, थैंक गॉड, आई गॉट अ नो आंसर एज वेल. संयुक्ता मोहंती जी कहती हैं नो. अब थोड़ा थोड़ा शिवम प्रजापति नो, अदिति ने नो, एंड उबैद खालिद कहते हैं नो. थैंक गॉड, इट्स अ बैलेंसिंग अप्रोच बाय ऑल. देन जुल्फिका कहते हैं नॉलेज मैटर करता है. वाओ. Ladies and gentlemen, I don't have that much of experience, but whatever experience I have gained in my last 41 years of biological age, I realized it's not generation gap, it's communication gap. It's communication gap. और जब बातें अधूरी रहती हैं, जब बातें होती नहीं हैं, जब बातों में गैप आ जाता है, एंड देन रिश्तों में आई बिलीव खटास आने लग जाती है, बिकॉज समवन एल्स इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप थ्रू गॉसिपिंग, थ्रू ग्रेपवाइन और थ्रू मिसकम्युनिकेशन. एंड दिस इज हाउ द रियल मैसेज वो कन्वे हो नहीं पाता है. आई रिमेंबर मंजू जी वाज टॉकिंग कि सब फैमिली मेंबर्स बैठते हैं एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग कि तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था. फिर कोई कहता नहीं नहीं, उन्होंने वो नहीं कहा था, उसका मतलब ये था. इमेजिन, इस तरीके से बात करने में मजा भी आता है, स्वाद भी आता है, और देखिए आपको सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है. लोगों की जो गलत फहमियां हैं वो भी दूर हो जा रही है. सो कम्युनिकेशन हमेशा कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे गैप आएगा, रिश्तों में दरार आने लग जाएंगे. एंड ये दिस इज अ वेरी रूट कॉज फॉर द फेलियर ऑफ ग्रेट टीम्स. दिस इज अ रूट कॉज फॉर द फेलियर ऑफ ग्रेट टीम्स. एंड देन कम्स continuous improvement. Continuous improvement. तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. और वो कविता भी आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. नन्ही चींटी जब चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है. मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. अच्छा, आप जितना कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहेंगे, आपका जो माइंड है वो अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करेगा. एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे. और इस तरीके से, इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन आई टॉक्ड अबाउट क्यूरियोसिटी, एंड आज भी मैं क्यूरियोसिटी की बात करूंगा. व्हेन यू आर क्यूरियस, योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन अ होलिस्टिक वे, एंड दिस इज हाउ इट लीड्स यू टू क्रिएटिविटी. अगले सेशन में हमारे मेंटोर केशवानी सर आएंगे, सुनील केशवानी जी, एंड आप सब मुझे मालूम है दिल से उनसे प्यार करते हैं और उनको दोबारा सुनना चाहेंगे. और केशवानी सर जब आएंगे तो वो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में आपको बताएंगे. एंड
ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो। और उसी 21st सेंचुरी स्किल्स में क्रिएटिविटी भी एक स्किल माना जाता है। इंडिया का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें भी ये स्किल्स को बहुत अहमियत दी गई है। तो कभी टाइम हो तो इन स्किल्स को जरूर पढ़िएगा। अब ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं नो, हाई इफेक्टिव टीम बनाने के लिए कॉमन गोल, कोहेजन, कोलैबोरेशन, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड क्रिएटिविटी, इन सबको सम अप करते हैं हम लोग एक छोटे से वीडियो के अंदर। It's smarter to travel in groups. So it was a beautiful example कि कैसे इन सारे स्किल्स जो हमने अभी शेयर करी थी हाई इफेक्टिव टीम बनाने के लिए, इनको और अच्छे से समझने के लिए जो वीडियो आपके सामने शेयर किया गया है वो बेस्ट एग्जाम्पल था। क्योंकि आप यू कुड रिलेट, ये सारी चीजें इन 3 वीडियोस के एग्जाम्पल में बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रिमेंबर द एंट्स, जब चींटियां चल रही थी एंड सडनली दे फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड द लीडर whistled, and that is the way they started communicating, and then they collaborated together, and they used creativity, and later on when they became a team which led to cohesion, they became cohesive together, they were committed, and then even the enemy was trying to suck them, but they showed continuous improvement. And the goal was to save the entire team, and they were highly effective. So you could also do the same in your life. The organizations you are working, the family you are a part of, the institutions where you are studying, or even the society where you are living, हर जगह आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन सर, हमें कौन सुनेगा? अभी तो हम बहुत छोटे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, तो चींटियों का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि एक छोटी सी चींटी भी बहुत बड़े विशालकाय हाथी को गिरा कर सकती है, धाराशायी कर सकती है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी यू हैव, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज you have. And good qualities will attract good people in your life. And this is how you can shift from like-minded people to right-minded people. You can shift from like-minded people to right-minded people. So let's move on to a more, elaborated details of the teamwork, because we discussed how teams are created. Now let's learn the stages. अलग अलग जो स्टेजेस हैं, दौर हैं जिसमें टीम हमारी बनती है, वो कौन से हैं? So there are 4 stages: forming, storming, norming and performing. फॉर्म करना यानी कि बनाना, हमारे जो टीम के लोग हैं उनके साथ कुछ नियमों को बनाना, कुछ चीजों को साझा करना, ताकि जो अलग अलग लोग हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उनके बीच में एक एक्वेंटेंस हो जाए।
जो अलग अलग स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं वो एक दूसरे को पहचाने, जाने। इस तरीके से हमारे बीच में वो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग खत्म होगी, हम एक एक्वेंटेंस बनेंगे और धीरे धीरे हमारी एक छोटी सी टीम उस ग्रुप में से निकल के आएगी और एक छोटी सी इफेक्टिव टीम बनने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। फिर आता है स्टॉर्मिंग। अच्छा, जब स्टॉर्मिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको इससे रिलेटेड कोई और वर्ड्स याद आ रहे हैं क्या? यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स। व्हेन आई एम शेयरिंग स्टॉर्मिंग, do you recall any particular word where the word storming could be related? Okay, and Deepak कहते हैं तूफान, Vidya कहते हैं तूफान. Okay, wonderful. Oh, Chinky Gupta ji, thank you very much. Brainstorming. Exactly, we're talking about brainstorming. Now, brainstorming का मतलब मैं कुछ सोच रहा हूं, आप कुछ सोच रहे हैं, मेरे थॉट्स कुछ हैं, आपके थॉट्स कुछ हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आनंद जी, ये पोल अभी भी डिस्प्ले हो रहा था। ओके, आई डोंट नो सर, आई थिंक कोई को-होस्ट है क्या जो कर रहा है? अच्छा, नो प्रॉब्लम, मैं देख लेता हूं सर। ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां पे अलग अलग लोग अपने अपने मतों को रखते हैं, अपने अपने सुझाव देते हैं, अब लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, तो वो इंडिविजुअल जो चीजें थी अब धीरे धीरे अब उस ग्रुप का, उस टीम का पार्ट बनते जा रहे हैं। मैंने अपना सजेशन दिया, आपने अपना सजेशन दिया, लोगों ने अपना सजेशन दिया, एंड द सेम इज हैपनिंग ओवर हियर व्हेन वी आर कंडक्टिंग द सेशंस। हम अपने ऑडियंस से फीडबैक भी लेते हैं। ये भी एक तरीके का ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि क्या हम लोग जो सोच रहे हैं और हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ऑडियंस को वही चाहिए, क्या कुछ और चाहिए। और इस तरीके से जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे अलग अलग मत के लोग, अलग अलग मति के लोग एक तरीके से सहमत होना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से बहुमत बनना स्टार्ट होता है। सो अलग अलग मत से बहुमत तक जब हम आते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम कहते हैं स्टॉर्मिंग। एंड आई रिक्वेस्ट माय ऑडियंस, आपको हर दिन कोशिश करना चाहिए कि कुछ नए नए टॉपिक्स लीजिए, जो करंट अफेयर्स हैं या फिर जनरल नॉलेजेस हैं या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको आप थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए और फिर अपनी एक छोटी सी इफेक्टिव टीम बनाइए। इफेक्टिव टीम कौन सी? जहां पे लोग उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग पहलुओं को पढ़ के आए, फिर आपस में वो साझा करना स्टार्ट करें, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। एंड देन यू कुड सी कि मैंने अकेले जो पार्ट पढ़ा था, हो सकता है शायद मुझे बाकियों का पता नहीं था, बट जब हम लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया उस टॉपिक पे, अब बिकॉज ऑफ ग्रुप एफर्ट, बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, अब मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक का। एंड इट इज रियली एन इफेक्टिव वे फॉर स्टडी ग्रुप ऑल्सो। सो यू शुड फॉर्म एन इफेक्टिव स्टडी ग्रुप। ओके, देन कम्स नॉर्मिंग। अब धीरे धीरे रिश्ते बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी होता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उसके लिए जो लीड कर रहे होते हैं वहां पे, उनको बॉन्डिंग टीम के अंदर और बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि यहां पे धीरे धीरे यू फील, यस, आई एम नॉट अलोन, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम अकाउंटेबल टू समवन और समथिंग, एंड देन यू फील गुड, वो फील गुड फैक्टर आता है। आई रिमेंबर एक मूवी में डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट डोंट यू थिंक कि अगर हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं तो उनका पावर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और वो पावर नहीं कहलाएगा, वो एम्पावरमेंट कहलाएगा। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां अगर आप देना शुरू कर दें तो धीरे धीरे लोग एम्पावर्ड फील करते हैं और इस तरीके से एक नॉर्म क्रिएट होता है। और जब एक नॉर्म क्रिएट हो गया है, कुछ रूल्स बन चुके हैं, अब हर कोई एक ही दिशा में दे स्टार्ट मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, एंड देन कम्स परफॉर्मिंग। अब दौड़ लगाने की बारी आ चुकी है, टीम बन गई है, बातें भी हो गई हैं, रिश्ते भी बन गए हैं, रूल्स भी बन गए हैं। अब मेन फील्ड में, ग्राउंड पे अब अपने आप को परफॉर्म करना है। और जब परफॉर्मेंस करते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर्स, बट यस, वी शुड बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज परफॉर्मेंस में अगर एक ही रास्ता आपने सोचा हुआ है, हो सकता है कि वो रास्ता काम ना आए, तो हमें री डिजाइन करना चाहिए, हमें री लर्न करना चाहिए। और कभी कभी आई रिमेंबर
थॉमस सर ने शेयर किया था दैट वी शुड अर्न लर्न एज वेल. देयर इज नो हार्म इन अर्न लर्निंग एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम. द टीम नोज अगर कोई एक गलत दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको खींचा जाता है. नो, दिस इज नॉट राइट. वी शुड गो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रूट एंड दैट टू नॉट अलोन, टुगेदर. And this is how all the stages of team development is done. अब साहब बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है. बचपन की वो कहानी बचपन तक याद रहती है. आई नो ये 3 कैरेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और कुछ लोगों को रिकॉल होना स्टार्ट होने लग जाता है. लोग कहते हैं सर आप इतनी पुरानी पुरानी चीजों को क्यों लेके आते हैं? क्योंकि किसी ने कहा था ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड. पुरानी यादों को कैसे छोड़ सकते हैं? आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग अ मूवी सम मंथ्स अगो, ऑल द ब्राइट प्लेसेस. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल डायलॉग. इट सेज वी डोंट रिमेंबर द डेज, वी रिमेंबर द मोमेंट्स. सो चलिए कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं. हाथी और बंदर की कहानी. हाथी और बंदर ये दोनों अपने अपने गुणों का बहुत अभिमान रखते थे. They were very proud of their qualities. और दोनों प्रूफ करने में लगे होते थे कि मैं तुमसे बेहतर, मैं तुमसे बेहतर. और होड़ लगी थी दोनों में कि श्रेष्ठ कौन है, कौन महान है. अब ये इसका नतीजा निकला नहीं तो उन्होंने बोला कि चलिए एक मेडिएटर को रखते हैं, एक मध्यस्थ लेके आते हैं. एंड दैट मेडिएटर, दैट मध्यस्थ, वो थे हमारे उलुक जी, यानी कि उल्लू महोदय, उल्लू महाशय, माँ लक्ष्मी जिन पे सवारी करती हैं. अब उल्लू की खासियत है ये 360 डिग्री एंगल से देखते रहते हैं, हर नजरिए को ये देखते रहते हैं. और ये तब देख सकते हैं जब लोग देखने की क्वालिटी यूज नहीं कर पाते. रात में अंधेरे में भी ये देख सकते हैं. तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा और हाथी और बंदर ये उल्लू के पास है. बोल साहब टेल अस हु इज बेस्ट, हु इज बेस्ट. उल्लू परेशान हो गया था. बोले यार क्या कर रहे हो तुम दोनों की बहस में कई दिनों से देख रहा हूं. चलो आज फैसला हो ही जाए. और फैसला करने के लिए एक कंपटीशन करते हैं, एक प्रतियोगिता करते हैं और उस कंपटीशन में जो जीतेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा. अब हाथी और बंदर दोनों बोले बिल्कुल चलिए कंपटीशन करते हैं, हम दोनों तैयार हैं. बट कंपटीशन है क्या? तो उल्लू ने बोला कि इस जंगल के बाहर या फिर इस जंगल के परे एक और जंगल है जहां पे एक बहुत पुराना पेड़ है और उस पेड़ पे एक स्वर्ण फल लगा हुआ है. तुम दोनों में से जो सबसे पहले उस स्वर्ण फल को ले आएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा. हाथी और बंदर दोनों एक्साइटेड और इस तरीके से कंपटीशन आरंभ हुआ. और वो किसी ने कहा है ना, आरंभ है प्रचंड आज मस्तकों के झुंड. तो उसी जज्बे से कंपटीशन आरंभ हुआ. बंदर फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ पे उछल उछल के आगे बढ़ने लगा. हाथी मस्त हिलता डुलता, सूंड को हिलाता हुआ, पेड़ों को उखाड़ता हुआ, मदमस्त रौंदता हुआ आगे चल रहा था. अब कुछ देर के बाद देखा कि सामने एक नदी है. अब बंदर महाशय वहां पे रुक गए थे, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. बंदर बोला कि मुझे जीतना है. सो बंदर विदाउट थिंकिंग टुक अ प्लंज, वो नदी में कूद गया. बट उसका करंट बहुत ज्यादा था, बहुत तेज था और बंदर बहने लगा. अब यहां पे हाथी के अंदर कंपैशन जाग उठा, दया की भावना जाग उठी और उसने अपना सूंड आगे बढ़ाया और बंदर को पकड़ के निकाल लिया. बंदर वॉज लाइक शॉक्ड. ऐसे कैसे? मुझे क्यों बचाया? मेरी सहायता क्यों करी? और इस तरीके से बंदर ने हाथी को अपनी कृतज्ञता प्रकट करी. बोला धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई. अब यहां से आगे देखो मैं तो नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मैं नदी तैर के जा नहीं सकता हूं. तो हे हाथी महोदय तुम आगे बढ़ो. हाथी ने बोला नहीं, मैं नहीं. एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और इस तरीके से हम दोनों नदी को पार कर लेंगे. बंदर सहमत और बंदर उछल के हाथी के पीठ पे बैठ गया. अब दोनों मदमस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए. नदी को क्रॉस किया, जंगल में पहुंचे. सामने वो पुराना वृक्ष दिखाई दे रहा था.
अब हाथी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी और उसने सोचा कि मैं इसको धक्का मार के गिरा सकता हूं, बट वो बहुत ही पुराना वृक्ष था, जैसे बरगद का पेड़ होता है, हाथी के हिलाने से भी ना हिला वो। फिर बंदर ने बोला कि हाथी दोस्त तुम रुको, मैं यहां से कूदता हूं और उस पेड़ पे चढ़ता हूं और मैं स्वर्ण फल लेके आता हूं। और बंदर प्रयास करने चला और बड़ी खुशी के साथ वो फल लेके आ गया और वापस हाथी के बैक पे पीठ पे बैठ गया। और फिर वापस दोनों उल्लू महोदय के पास आते हैं। उल्लू बोला बहुत बहुत बढ़िया, अब मैं बेस्ट का अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है। इससे पहले उल्लू कुछ बोल पाता, दोनों ने बोला, बंदर और हाथी ने बोला कि उल्लू महाशय बस अब नहीं। दोनों एक साथ बोला, नहीं नहीं उल्लू दादा, अब रहने दो, हम में से कोई बेस्ट नहीं है। ये जो फल आपके सामने आया है, ये हम दोनों के संयुक्त प्रयास से एक साथ मिलके हम लोगों ने काम किया और इस तरीके से ये फल हम आपके पास लेके आए हैं। सो हे उल्लू दादा, हम में से कोई बेस्ट नहीं है। उल्लू का जो मोटिव था वो वहां पे सिद्ध हो गया। उल्लू दोनों को कुछ सिखाना चाहता था और इसीलिए उल्लू ने कहा, देखो हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है, उनमें अपने गुण होते हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं, एंड वी शुड नॉट थिंक दैट इफ समबडी हैज गॉट अ वीकनेस वो एक्चुअली में कमजोर है। हो सकता है कि आपकी कमजोरी उससे ज्यादा बड़ी हो। And this is how I believe Owl said, this is how I believe no one is better than the other one. We all are different. हम भिन्न भिन्न हैं, हम अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे सही सम्मान तो उसी को मिलता है जो मिलजुल कर रहता है। और उस दिन से अगर आप देखेंगे, बंदर और हाथी दोस्त बनकर रहने लग गए। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज यही कि अपने अपनी क्वालिटीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग, जब आप जुड़ जाते हैं, कोलैबोरेट हो जाते हैं, तो लाइफ और बेहतरीन हो जाती है, लाइफ और बेहतरीन हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं कोलैबोरेशन। सो ये जो स्टोरी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया और आपके स्क्रीन पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं कोलैबोरेशन का, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। कोलैबोरेशन, सर क्या टीम वर्क और कोलैबोरेशन अलग अलग हैं या एक जैसे हैं? तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, दोनों अलग हैं। If I talk about collaborative team, it is a slightly different version of a traditional team, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनके पास अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं और हर कोई अलग अलग एरिया में उसकी एक्सपर्टीज होती है, बट स्टिल दे कम टुगेदर, दे शेयर सिमिलर गोल्स, they share similar resources, they share similar leadership, and this is how that is we call the collaborative skills. And with their diverse set of specialized skills, they should be able to do the problem solving as a group. And instead of all team members pulling in the same direction, collaboration brings together professionals from diverse areas having diverse expertise. And they combine the skills, they combine the insights for a shared goal, which could not be achieved through a reliance on single skill set. आज यहां पे भी आप देखेंगे VIK, अदिति महाविद्यालय, then the trainers and audience, हम सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं बात कर सकता हूं, बट ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाना, लोगों को एक साथ लेकर आना, वो मेरी क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी हमारे इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का है। अजब देन हमारे IT में हेल्प करने वाले आनंद जी हैं, उनके पास जो क्वालिटी है, वो जो स्किल्स है, वो मेरे पास नहीं है। इसलिए पोल में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बट आनंद जी ने अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ पे यूज किया और उस तरीके से हमारा जो पोल वाला राउंड था वो बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये कोलैबोरेशन है। अच्छा, अगर टीम वर्क की बात करें तो टीम वर्क इट रिलायज ऑन द कोऑर्डिनेशन टू अचीव पीक प्रोडक्टिविटी। कोलैबोरेशन की अगर बात करूं तो इट डज नॉट थ्राइव ऑन द एडहेरेंस टू अ प्री डिटरमाइंड सिनेरियो, बट रादर इम्प्रूव। तो पहले से जो निर्धारित कारक होता है वो उसके लिए नहीं होता, बल्कि हर रोज उसमें और इंप्रूवमेंट लाता है। वो कोलैबोरेशन से ही पॉसिबल होता है। और जब कोलैबोरेशन अगर आप देखें अपने चरम पे पहुंचता है,
तब अलग अलग विचारधाराओं का एक साथ विलय होता है, संगम होता है। संगम ये वही जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, कोलैबोरेशन होता है, और फिर एक तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए वो नदी आगे बढ़ पड़ती है। और उसके देखेंगे कोलैबोरेटर्स जो होते हैं, इनके बीच में एक्टिव डायलॉग होता है, इनके आइडियाज, इनसाइट्स, ओपिनियंस, ये सब फ्री एक्सचेंज होता है, और इस तरीके से रीइंफोर्समेंट होता है। कहां पे? टीम के कलेक्टिव एबिलिटी में, ताकि वो टीम एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज को एक ईंधन की तरह, एक फ्यूल की तरह उसमें डाल सके। सो अब कुछ हम लोग अपना कोलैबोरेशन के फायदे की बात कर लेते हैं, कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अच्छे से अगर आप लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज शोकेसिंग 6 बेनिफिट्स। ये वो 6 गुण हैं जो और फायदे हैं अगर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सही लोगों के साथ, राइट माइंडेड लोगों के साथ कोलैबोरेशन आपका हो रहा है, तो आपको ये फायदे मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। If you could recall a company called Facebook, बहुत पॉपुलर हुआ। You know why? Because जब इन्होंने नेटवर्किंग स्टार्ट करी तो इन्होंने समझ लिया बहुत पहले ही कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, हमें और लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। इन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और आज देखिए फेसबुक पूरे दुनिया में हर जगह फैल चुका है। अच्छा, फेसबुक ने एक चीज और किया, इन्होंने इंस्टाग्राम को भी एक्वायर किया और साथ में व्हाट्सएप को भी एक्वायर किया, और अब धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक साथ अपने कस्टमर्स को देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ जब कई स्किल्स के लोग एक साथ कोलैबोरेट हुए। अच्छा, सेकंड, एडेप्टेबिलिटी, और कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, बिकॉज कैमेलियन की खासियत है वो एडेप्ट कर जाता है। प्रतिकूल, अनुकूल, ये वर्ड्स आई बिलीव आप लोगों ने सुने होंगे। तो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालते रहना, इसको हम एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और जब परिस्थितियां आती हैं, जब आपके साथ अलग अलग लोग होते हैं, तो आप उनको देख के चीजें सीख लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा फायदा, जब अलग अलग मत के लोग आते हैं, अलग अलग स्किल्स के लोग आते हैं, अलग अलग इंसाइट्स के लोग आते हैं, तो हमारे अंदर भी ना वी ट्राई टू लर्न थिंग्स। हमें भी लगता है हमें भी ये मालूम होना चाहिए, और इस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, एंड धीरे धीरे उस टीम में पार्टिसिपेशन का लेवल बढ़ने लग जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग आई लर्नड टुडे, लाइक आनंद जी, आई कोलैबोरेटेड विद यू जस्ट टू लर्न हाउ टू यूज द पोल्स। देखिए, ये फायदा है कोलैबोरेशन का। अच्छा, अगर आज हमने कोलैबोरेशन नहीं किया होता तो मंजू जी का एग्जाम्पल जो फैमिली का, वो हमें नहीं पता चलता। एंड वी लर्नड स्किल कि फैमिली के अंदर कैसे बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ये फायदे होते हैं स्किल्स, आप अलग अलग लोगों के सीख रहे होते हैं एक साथ जुड़ के। अच्छा, बेस्ट पार्ट, आई प्लान्ड अ गोल कि मुझे ये चाहिए, बट जब मैं अलग लोगों से मिला तो मुझे लगा कि मेरा गोल जो मैंने किया था शायद वो नहीं था, तो मैंने उसको और रिफाइन किया, और इस तरीके से हम सब धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लग गए। एंड यू नो व्हाट, अगर गाड़ी के चारों पहिए अलग दिशाओं में जाएंगे तो अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, तो हमें उसका अलाइनमेंट करवाना होता है ताकि सही दिशा में गाड़ी चलती रहे। एंड एंगेजमेंट, अरे ये वो एंगेजमेंट नहीं है जो कई लोग सोचते हैं, यू नो, डायमंड रिंग वाला। नो, एंगेजमेंट का मतलब होता है बिजी रहना, अलग अलग पहलुओं को समझना, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ाव करके अपना रोल, अपना पार्टिसिपेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहां पे शोकेस करना, और इस तरीके से टीम में हर कोई इंगेज रहता है। इमेजिन अ सिचुएशन, यू नो, आपके टीम में एक व्यक्ति है जो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। डोंट यू थिंक दैट पर्सन इज नॉट एन एसेट, rather that person becomes a liability? So when you collaborate, you try to engage everyone. और इस तरीके से मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ रहा है, अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। Oh, sorry, I'm so sorry.
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथ। So, ladies and gentlemen, you could see this song, it summed up everything. अकेले मुश्किल होती है, दिक्कतें ज्यादा आती हैं, लेकिन जब एक साथ जुड़ जाते हैं, टीम बनाते हैं, कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स है वो कम होता है और रिजल्ट ज्यादा होता है। और कई लोगों ने चैट बॉक्स में शेयर करना स्टार्ट किया, ये नेम ऑफ द सॉन्ग, एंड संयुक्ता मोहंती कहती हैं मेमोरेबल सॉन्ग, एंड लोग कहते हैं टीम वर्क। सो पुराने गानों में देखिएगा मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही एक गाना मुझे याद आ रहा है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। So we are heading towards the closure part of my responsibility over here, and the last thing I could showcase to you all, ये एक रिसर्च आया था कि 2022 में जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, अलग अलग वेंचर्स हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं, कौन कौन से हैं, और आप सारी चीजें देखिए, सारे ऑप्शंस देखिए। यहाँ पे आपको टीम वर्क और कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बिकॉज ये सारे वेंचर्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे बिजनेसेस, ये सारे सेक्टर्स बिना टीम वर्क और कोलैबोरेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब कि आज जो हमने बातें शेयर करी हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव का कारक बन सकता है। We can become a catalyst in the change you want, you might desire, or you might love to have in your life. So with these, I would say that closing is a beginning of new thing. So does everything, previously we have stated, serve to imply an either or proposition of teamwork and collaboration? Of course not. हर चीज हमने जो बातें करी हैं वो कवर नहीं कर सकता। We tried कि कुछ कुछ चीजों को शेयर किया जाए, कुछ कुछ चीजें आपको बताई जाएं, ताकि आपके अंदर the hunger वो ज्यादा हो, भूख ज्यादा हो, ताकि आप उसको ढूंढना स्टार्ट करें। और इसलिए मैं कहता हूं, कई लोग इसको एंड कहते हैं, बट आई बिलीव जो थोड़ी थोड़ी चीजें हमने बात करी हैं, शेयर करी हैं आपके साथ, वो एक नए बिगिनिंग की तरफ लेके जाने वाला है। और ईश्वर करें कि आपका जो नई बिगिनिंग है लाइफ में, नई इनिंग्स है लाइफ में, वो बहुत बेहतरीन हो, सुपर ब्लास्टर हो, और आप सोसाइटी में एक चेंज का रीजन बने, एक पॉजिटिव चेंज का रीजन बने। विद दीज वर्ड्स आई विल थैंक यू ऑल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ ग्रेट सपोर्ट टू मी। Thanks a lot for sharing your views, your reviews, your feedbacks, and thanks a lot again for making me a part of your amazing life. And this is how we both can have a great lifestyle. Thank you very much. कुछ क्वेश्चन आए हैं सर, जो आशा करते हैं आप अलाउ करें तो इसको पूछ लेते। सर पहला क्वेश्चन है कि what are the important skill for teamwork? Okay. The first thing I believe the important skill about teamwork is communication. We should communicate. आपस में बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि बाकी लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, हमारे अंदर सिंपैथी नहीं, हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है वो किस परिस्थितियों में है। अच्छा, तीसरा, हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से हमें बदलते रहना चाहिए, और बदलाव कोई बुरी चीज नहीं है, बदलना जरूरी होता है। तो ये तीन चीज आई बिलीव कि टीम वर्क में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। What are the traits of successful collaborator? Okay. Collaboration, again, वो कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। So we should know first what we want. Collaboration ऐसा ही नहीं होता, किसी एक पर्पस के लिए होता है। We should understand what we want. Second, we should understand what we need. Third, we should understand what are the resources we have and what are the resources we don't have.
And then we should analyze our current situation. Accordingly, we should evaluate that whether we can have it within our organization or we have to get it from outside the organization. And then we have to calculate the cost as well. क्या अगर हम बाहर से लेके आएंगे उतना कॉस्ट हम सह पाएंगे? क्या वो कष्टदायक तो नहीं होगा? और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप सही लोगों को अपने से कोलैबोरेट कर पाएंगे. One more thing I believe, when you are collaborating, you should analyze and you should find out the credibility of the people who are collaborating with you. Sometimes what happens कि कई लोग हमसे या आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ये सोचते हुए कि उनको फायदा हो जाएगा. सो ये एक मैलाफाइड इंटेंशन होता है. हमें ऐसी मानसिकता वाले लोगों से बचना चाहिए और इसीलिए हमें बाहर से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए. What are the methods to build a successful team? Okay, the methods. There are different methods, but today I'm talking here as a layman, जो कि हर किसी के लाइफ में एक आसान तरीके से हम उसको अपना सकते हैं. The first method is called perception. You should perceive that the perceptions we have, is it like in accordance with the people around us? In this perception manner, we can be persuasive. So when we are persuasive, the people around us, they are convinced. And when you are persuasive, then the next is called that the team should be a one which has got unique or exclusivity. This is a kind where exclusivity leads to the competitive advantage, and through which you can have an edge over others. So these are some methods which I believe as a layman, if we follow, then we can have a good team. जी. ऐसे तो और भी क्वेश्चन है सर, बट समय के अभाव में मैं सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा. इतने अच्छे से सारे आपने क्वेश्चन के आंसर किए और थैंक यू सो मच सर ऑन बिहाफ ऑफ अदिति महाविद्यालय एंड विश यू अगेन. So on the behalf of Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya and Vishwa Yuva Kendra, I give a heartfelt vote of thanks to our guest speaker, Mr. Govind Mishra ji, who spent his busiest time gracing that occasion. Again, my vote of thanks to you and my sincere gratitude to you. Thank you, sir. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.